अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने जिस टॉपिक के ऊपर बात करना, ऑब्वियसली आज पर प्रीवियस जितनी भी नोशंस थे, आज हमारी रिविजन्स है. ऑलराइट, वी आर स्टार्टिंग विद द रिविजन्स and starting from the revision, obviously it's going to be started from the cell. Cell has been a lecture previously about the cell must have been talked about. और आज जो हमने जिसके बारे में बात करना है टेक्निक्स है. ठीक है. Why I am so specific about this techniques and why I need you to learn and pay attention to these techniques, and from time to time again we come back over these techniques, because not only these techniques are part of the cell, but as a few of you who were with me on protein metabolism and later on, these techniques they keep on going in every chapter and all. Okay? These techniques they have a significant importance in understanding of your physiology, biochemistry. Later on in the next year of education, आपकी forensic और pathology, ये ही टेक्निक्स आपको बहुत ज़्यादा बेस करेंगे. ठीक है. सो राइट नाउ राइट हियर इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड. ऑब्वियसली मैंने इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था. आज हमारे पास 1 घंटा है टू रिवाइज देम ऑल. But as you all know, we are always available at your service. आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, whatever the means that you use. So let's go ahead of it. Techniques, जो basic techniques हैं जो you need to learn. सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक हो गया. मेरी स्लाइड शेयर आप लोगों को नजर आ रही होगी है. दूसरे नंबर पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. तीसरे नंबर पे आपका क्रोमोक्रोमेटोग्राफी, जिसको फर्दर टाइप्स हैं इसकी. चौथे नंबर पे इलेक्ट्रोफोरेसिस. पांचवे पे फोटोमेट्री. 6 रेडियो इम्यूनोएसिड एंड 7 enzymatic immunoassay. Most of these names you must have heard earlier to this. I'm sure enzyme like ELISA we must have seen many times before on the investigations done from different hospitals and medical centers. Centrifugation and anti-centrifugation, you must have good knowledge about them previous to your BDS MBBS, because those who have come from A levels and O levels, they must have a really fine idea about them. और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हम लोगों को बहुत पहले पता है कि इसके नाम से कि भी जी इलेक्ट्रिक ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन. और फिर उसके बाद फोटोमेट्री. The name tells it is concerned with the photo. So ये एक ओवरव्यू है जो कि आप लोगों को नामों से पता चल रहा है. Let's go a little bit in detail as much as you're required to. ठीक है. Centrifugation. ठीक है. This is a process. Let me recess this. Okay. Process centrifugal to separate the lighter portion of the solution, mixture the suspension of the heavier portion. पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होता है कि जब भी आप किसी चीज को किसी मीडियम के अंदर रोटेट करते हैं around a fixed axis or a fixed pillar or pivot, when you rotate something around, or maybe you have ever tried this thing when you rotate it around the pole or anything. As much as you put a force on that pole or the point or axis of the rotation, the same amount of force you experience in the opposite direction. That is called centrifugal force. ठीक है. The opposite is centrifugal force, and that is centrifugal force. इस फोर्स का फायदा क्या होता है जब भी हम कोई भी सैंपल लेते हैं और मिक्सचर लेते हैं, इवन कंपोजिट लेते हैं, तो नॉर्मली दे हैव अ कलर. जैसे कि ब्लड है, ब्लड इज ऑलवेज रेड इन कलर, or it seems to be a uniform solution, kind of red color solution. But when you put it in a centrifuge machine and you centrifuge it for a while, you will see that serum separates, red blood cell separates, and even the BPC separates. They get bigger. Okay? So you will find 3 or 4 portions of the same blood. So this is what the application of this centrifugal force or centrifugation is.
Remove cellular debris, blood, separate, and plasma and serum. Concentrate cellular elements for the microscopic analysis. So, by itself, this last sentence tell us that by itself it's not an investigation. Okay? It makes us prepared for the next step. For example, अभी मैंने आप लोगों को पिक्चर दिन पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर इज एस यानी आपको सिक्लोसाइटोसिस पढ़ाया था मैंने आपको, और मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन डिजीज, हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड हीमोग्लोबिन डिफॉर्मिटीज पढ़ाई थी. So to see that hemoglobin out of the blood sample, you need to actually separate those रेड ब्लड सेल्स सो दैट दिस टेक्निक वर्क्स फॉर डायबिटीज. ठीक है जी. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट्स प्रोटीन bonds or antibodies bond ligand from a free ligand amino acid. ठीक है जी. Extract solutes and aqueous unorganic solvents, separates lipid components like chylomicrons and components of a plasma. इसमें से बाकी तो सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी. सेपरेट प्रोटीन्स, प्रोटीन बॉन्ड, ठीक है ना, और एंटीबॉडी बॉन्ड लाइगेंड. ठीक है जी. और दूसरा लिपिड कंपोनेंट्स लाइक काइलोमार्कर्स. ये थोड़ी सी बातें एक्सप्लेन करता हुआ आगे जंप करूंगा. प्रोटीन्स normally they are bonded or proteins are formed by peptide bonds, peptide या सल्फाइड बॉन्ड्स या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ठीक है जी. ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं तोड़ती. What we mean here is कि ये जो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं, ये अपनी साइड चेन से अट्रैक्टिव डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव या चार्ज अट्रैक्टिव बॉन्ड बनाते हैं दूसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ. वो बॉन्ड टूट सकते हैं. ठीक है. दैट इज इंटर प्रोटीन बॉन्ड या इंटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बॉन्ड टूट सकते हैं. इंट्रा प्रोटीन प्रोटीनेशियस बॉन्ड्स नहीं टूट सकते. ठीक हो गया. ये भी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए. काइलोब्लास्ट लिपिड को एज सच फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं करता. That is not here. Chylomicrons are the larger parts of lipids, जो कि lipid carrying elements होते हैं और उनको बाकी components यानी blood से sample से अलग आता है. So this is also explainable. उसके बाद है ultra centrifugation. Obviously जिस तरह की centrifugation है उसी तरह ultra centrifugation है. Means it is like more in anything. Ultra means more. It's an indispensable tool for isolation of subcellular organelles, protein and nuclear. Obviously, as much as the speed goes up. अब आपने पीछे centrifugation में ये पढ़ाया कि हमने RBC separate किया था. This comes as a MCQ question as well. So make sure. RBC separate करने solution में which one of the following techniques is being used? Centrifugation. अगर मैं कहता हूँ mitochondria separate करना है तो which of the following would be used? Ultracentrifugation. Because that technique, centrifugation, is based for cellular separation. Ultracentrifugation is based for cell organelle, even a smaller proportion or a smaller component level. ठीक है जी. The rate of which sediments occurs and ultracentrifugation depends on the size, shape, and particular micromolecules. We have this machine in our laboratory. So, inshallah, as soon as power settles down, you will come back to the laboratories. We can show you, we can run you this test, you can understand that as much as the smaller part of a cell you need to separate, you need to set the rate. As much as you set the rate and concentration of the solution, that much you can even purify or extract the components. All right. So this is it about this much to understand. उसके बाद the next it is expressed in the term of sedimentation coefficient. Obviously, the sedimentation coefficient previously in our course we used to withdraw this thing. और ड्रॉ यानी हम लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट करना होता था, बट नाउ वी डोंट रियली नीड टू डू दैट. हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हमें क्या डिनोमिनेट करता है. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आप इस चीज पे याद रखिएगा. अगर आपसे टेक्निक्स के अंदर से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट,
Yeah, write down sedimentation coefficient. So this is the sedimentation coefficient equation. That is where V is in migration, यानी sedimentation of the molecule. एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो कि साइज दिया गया होता है कि जी इतना mm की टेस्ट ट्यूब है, 5 mm की है, 10 mm की है, उसमें हमने सोल्यूशन डालने के बाद देखना होता है कि जो हमारा सेडिमेंट निकला है बाद में जब हमने उसे मशीन से बाहर निकाल के सेडिमेंट किया है तो वो 0 mm से लेके 7 mm पे खड़ा हुआ हाइट पे, 10 mm पे खड़ा हुआ, या 2 mm पे खड़ा हुआ, दिस इज द माइग्रेशन लेवल. पहले तो वो सोल्यूशन में वो आपको सेपरेट नहीं है. जब आपने सोल्यूशन को सेपरेट कर दिया तो इसका मतलब है कि हाइट विल टेल यू कि वो किस लेवल ऑफ मैं इसके अंदर कोई डाल सकूं आप लोगों को. तो एक मिनट आपको इसमें बस आर्ट वर्क होना चाहिए. सही बेटा, मेरे पास इसमें आर्ट वर्क नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाता कि व्हाट आई मीन टू से. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक कॉलम है मेरे पास, उस कॉलम के अंदर या 10 mm का मेरे पास कॉलम है. उस कॉलम को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 डिफरेंट यूनिट्स के अंदर तो बेटा होगा क्या कि अगर जब आफ्टर सेडिमेंटेशन कोई एक सेल एक पर्टिकुलर हाइट पर होगा उस सेल और उसको उसकी माइग्रेशन लेवल, देन इट कम्स either रोटेशन ऑफ सेडिमेंटेशन, मोटर रोटेशन और रेडियन. ठीक है ना. ये वो आरपीएम है, राउंड पर मोटर है या राउंड पर सेकंड है, यूनिट टाइम है जो कि एक मोटर ने रोटेट करना है. ये गिवन वैल्यू होती है आपकी किसी भी चीज के अंदर, किसी भी मशीन के अंदर जब आप डाल रहे होते हैं ये गिवन वैल्यू होती है. The sedimentation coefficient has the units of seconds. It was usually expressed in units of 10 to 13 seconds. Since several biological macromolecules are in range, this is being one Schwarzschild unit. ठीक है. तो Schwarzschild यूनिट, ये जो S है दैट स्टैंड्स फॉर Schwarzschild यूनिट. ये जो Schwarzschild यूनिट है ये आपको आगे काम आएगा इन द डिनोमिनेशन ऑफ द वेट, चार्ज एंड द कंसंट्रेशन. ठीक है ना. ये आपको जब प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो उधर भी Schwarzschild यूनिट बहुत ज्यादा काम आएगा. जितना हैवियर प्रोटीन होगा उसका Schwarzschild यूनिट उसी तरह चेंज होगा. सो ये वो चीजें थी जो आपको इस यूनिट से पता होनी चाहिए. आगे चलते हैं. ठीक है जी. क्रोमेटोग्राफी या अदर सर्टिफिकेशन और अल्ट्रा सर्टिफिकेशन मैंने खत्म कर दिया. किसी को कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है तो हम राइट अवे. ठीक है ना. तो फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है बेटा, यू आर ओपन टू क्वेश्चंस एनी टाइम, राइट. तो आप लोग साथ साथ अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आगे चलते हैं. 3 क्रोमेटोग्राफी. अच्छा, chromatography is an analytic technique dealing with the separate mixtures closely related compound in a mixture. These includes proteins, peptides, amino acids, lipids, carbohydrates, vitamins and drugs. ठीक हो गया. अब बेटा इसी स्टेटमेंट को आप देखो, the difference has laid over here. प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, मैंने आपको पीछे बताया था कि पेप्टाइड नहीं तोड़ेगा. हमने पीछे कहा था काइलोमाइक्रॉन्स ऑफ फैट्स, इधर हमने अमीनो एसिड एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स. ड्रग्स तो ऑब्वियसली एक कंपोजिट होता है, ड्रग हमेशा कंपोजिट होता है. बेटा एवरीवन अंडरस्टैंड सो फॉर. ठीक है, मुझे थोड़ा सा हाँ ना बता दो ताकि मुझे पता चले कि मैं आई एम ऑन द राइट ट्रैक. प्लीज पुट अप सम फीडबैक. ठीक है, तो हम क्रोमेटोग्राफी शुरू करें. ओके, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू. बंडल ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू. आगे चलते हैं. क्रोमेटोग्राफी, बेटा क्रोमेटोग्राफी का और सेंट्रिफिकेशन का सिर्फ ये डिफरेंस है कि सेंट्रिफिकेशन सेलुलर लेवल, सब सेलुलर लेवल कंपोनेंट्स को, यानी अगर आपको मैं कहता हूँ गाड़ी के कंपोनेंट्स हैं, एक दरवाजा, एक चेयर और एक स्टीयरिंग. ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. ये सारे
कंपोनेंट्स है गाड़ी के। अगर आपको कहता हूँ बेटा इनके कंपोनेंट्स से लादा करें तो आप ये खोल खोल के पेज ये लादा करें। सो दिस इज व्हाट साइंटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ साइंटिफिकेशन। सर्टिफिकेशन दो गाड़ियां लदा कर देगी, अल्ट्रा सर्टिफिकेशन उस गाड़ी के अंदर के दरवाजे कंपोनेंट से लदा करेगी। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट क्रोमैटोग्राफी, हम अगर एक सीट है तो सीट के अंदर से उसका फोम, उसके स्प्रिंग्स, उसके वो सारे यानी इंट्रा सेलुलर लेवल पे हम सेग्रीगेशन शुरू करें। सो पहले हमने प्रोटीन के मॉलिक्यूल से अलग किए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर से अलग किए, अब हम प्रोटीन्स को भी तोड़ सकते हैं। फॉर दैट रीजंस कि हम जब ये देखते हैं कि एक प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल वेलिन है, आइसो वेलिन है, या हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्लूटामीन है, तो उसके अंदर कौन कौन से फॉर्म के नाइट्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग, उसकी स्टडी, स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा है। या फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पाइलोमाइक्रोन एक फैट है, उसके अंदर हमने देखना कितने हमारे पास ट्राइसाइल ग्लिसरॉइड है, अमीनो एसिड कितने हैं। इस तरह की सेपरेशन करने के लिए हमारे पास क्रोमैटोग्राफी, यानी एट द लेवल ऑफ एटॉमिक लेवल, एट द लेवल ऑफ बॉन्ड्स लेवल, ठीक है, ये यूज होता है इस सारी चीज के लिए, राइट। गोइंग अहेड टू दैट, हम लोग अब ये देखते हैं ये दिस इज प्रिंसिपल। क्रोमैटोग्राफी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ मोबाइल फेज एंड अ स्टेशनरी फेज। ठीक है जी, इसके अंदर दो फेज होते हैं, यानी दो डिफरेंट कमरे होते हैं। ठीक है, एक मोबाइल होता है और एक स्टेशनरी होता है, राइट। अब देखते हैं, मोबाइल फेज रेफर्स टू द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। मोबाइल जो फेज होता है उसके अंदर आपका सारा गंदबला एक साथ होता है, ठीक है ना, जिसको आपने सेपरेट करना है। सो ठीक है, फ्रॉम द एल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मोबाइल इज अ वेस्ट। सो मोबाइल फोन इज अ वेस्ट और मोबाइल इज अ वेस्ट। सो मोबाइल को हमेशा याद रखें, कंपार्टमेंट वेयर एवरीथिंग इज टू बी सेपरेटेड, ठीक है। एंड स्टेशनरी फेज इज अ पोरस सॉलिड मैट्रिक्स। यहाँ पे एक चीज को जरूर ध्यान में रखना, पोरस सॉलिड मैट्रिक्स, इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखना, थ्रू विच सैंपल कंटेन्ड विल बी सेपरेटेड। तो जो स्टेशनरी फेज है ये वो है जो जिसके अंदर आप कंसिडर करें कि यार यू आर सपोज टू कॉल somebody home for a lunch or dinner, and there are a lot of people roaming around in your life every day, and you will not call all of them into your home. So you will separate some of them, or you will select some of them, and you will call them at home for further interaction. So those who are stationary at your home, those are the desired ones. So दो फेसेस हो गए क्रोमेटोग्राफी में, एक मोबाइल एक स्टेशनरी। जो आपको रिक्वायर्ड है वो स्टेशनरी है, जो आपको आपने टू बी रिक्वायर्ड होना उसमें से या उसको सेपरेशन के अंदर लेके जाना प्रोसेस के अंदर, वो मोबाइल। Interaction between mobile and stationary phase results in a separation of compounds from the mixture. These interactions include physiochemical principle, absorption and partition, equine exchange, affinity, और ये सारा, ये जितने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन है, इतने इतने ही टाइप की आपकी क्रोमेटोग्राफी मौजूद होती है, ठीक है। अब होना क्या है, आपको पता है दुनिया में ये जितने भी हम केमिकल कंपाउंड्स और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, दे आर बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवलेंट है, आयनिक है, डाइपोल है, अट्रैक्शन है, 3D डायमेंशनल है, सो एंड सो, जो आपकी आइसोमेट्रीज हैं, आइसोमेट्रिक प्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। So all of that based on a property of charge और attraction, और फिर उसके बाद वो जब चार्ज और अट्रैक्शन बन जाती है, फिर ऑन सो ऑन, फिर एक्सटर्नल फैक्टर आ जाते हैं। अगर कोई चीज़ किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रही तो हमने उसकी हीट ज़्यादा कर दी तो वो उबल के उसके साथ मिक्स हो जाए। चीनी आपके शीरे में मिक्स नहीं हो रही, आपने और उबाल दिया तो वो चीनी पानी के अंदर मिक्स होकर शीरा बन गया। अगर कोई चीज़ और मिक्स नहीं हो रही, उबालने से हमने पीएच ऑल्टर कर दिया, ठीक है ना, वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया उसके अंदर। और भी कोई चीज़ हो रही, तो जिस तरह हमारा गोश्त नहीं डाल रहा, अम्मा जी ने सिरका भी डाल दिया, अम्मा जी ने 10 मसाले भी डाल दिए, 1.5 घंटे से उबाल भी दिया, वो गोश्त नहीं डाल रहा, तो फिर हमने क्या किया, प्रेशर कुकर में प्रेशर लगा दिया। सो यू बी इंक्रीज द प्रेशर, दैट इज द फाइनल फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग दोज bonds between the meat and making it soft and mallow for you. Okay? So these are the techniques that we do to increase the level of interactions. And similarly, vice versa, यही techniques को अगर हम
रिवर्स करेंगे तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो बॉन्ड्स हमने बनाए हुए हैं उनको सेपरेट किया जाए। ठीक हो गया, राइट। एक चीज को हमने उबाल के नरम कर दिया, अगर आप इसे फ्रीज करेंगे वो सख्त हो जाएगा। ठीक हो गया, एक छोटी सी बात। इसी तरह क्रोमेटोग्राफी का भी प्रिंसिपल ये है कि जो उसका मोबाइल फेज होता है और उसका जो स्टेशनरी फेज होता है, बट आई कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट ऑफ द थिंग दैट आई एम टॉकिंग। सुन लो, आगे की चीजें कोई मुश्किल नहीं। मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज के अंदर जो डिफरेंस होता है वो एक मीडियम का होता है जो कि आप लोग डालते हैं। ठीक है ना, वो सिलिकॉन जेल हो सकता है, वो कुछ एक चीज हो सकता है। सेपरेशन के लिए आप चार्ज और साइज और वेट, इन सारी चीजों का एक मीडियम बनाते हैं जिसके अंदर चार्ज भी अवेलेबल होता है, जिस तरह छलनी का या स्टेनर का फिजिकल पूरा साइज होता है वो भी अवेलेबल होता है। और तीसरी चीज उसके अंदर जो क्या है, एफिनिटीज भी अवेलेबल होता है, तो वो हम रख देते हैं और उसके ऊपर से चीजें गुजार देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक सोल्यूशन से प्रोटीन निकालना, प्रोटीन इज नेगेटिवली चार्ज, तो मैं अपना जो मीडियम है उसे नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज कर लूंगा, बाकी सारा चीज उसके ऊपर से गुजर जाएगी नेगेटिव चीज। एक चीज है जिसके अंदर मुझे एम्बिगुअस हूँ कि इसमें से चार्ज क्या है, मैं पहले कहता हूँ यार वो जो टाइनीएस्ट मॉलिक्यूल है वो मैंने सेपरेट करना, तो मैं आपका पोरस साइज चेंज कर दूंगा, तो उसके अंदर से छलनी जिस तरह स्टेनर जिस तरह स्टेन आउट हो जाएगा, वो स्टेयर अप हो जाएगा और वो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। सो दीज आर द टेक्निक्स यूज होती हैं। लेट्स गो अहेड ऑफ इट। अच्छा जी, use separation of amino acid sugars and derivatives of the peptides and a few drops of containing, ये छोड़ दो सारा कुछ, आप लोगों को जो चीज़ आपको मैंने बतानी है। ये organic compounds that migrates on a paper is the mobile phase, ठीक है ना। When the migration of the solvent upward, there's ascending chromatography, descending chromatography, and solvent moves downward, ठीक है जी। Other, the next or the easiest form to understand the chromatography is paper chromatography. इसमें क्या करते हैं, used for separation of amino acid, sugars, derivatives and peptides. ये amino acids को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें करते क्या है, few drops of solution containing a mixture of a compound separated is applied, spotted at one end. जिस तरह आप लोगों ने लिटमस पेपर देखा होगा बेटा, लिटमस पेपर याद है आप लोगों ने पीछे किया होगा लेबोरेटरीज में टेस्ट, पीएच के लिए कलर चेंज करता है, आप उसका टिप डालते थे सोल्यूशन के अंदर और वो अपवर्ड माइग्रेट करता था कलर। ठीक है, सो द मोर द कलर वुड बी चेंज, द लिटमस पेपर वुड टेल यू कि द सोल्यूशन इज अल्कलाइन और एसिडिक। जितना वो कॉलम अपवर्ड मूव करता था लिटमस पेपर का, जो स्पेशलाइज्ड लिटमस पेपर था उसमें जितना ज्यादा वो ऊपर मूव करता था, दैट वुड हैव शोन यू कि बेटा वो जो एक सैंपल है जिसमें आपने लिटमस ड्रॉप किया, फॉर एग्जांपल ब्लू हो गया, तो दिस मींस इट इज एसिडिक and it has gone top up, that means it's very acidic. If it is just stayed down, low acidic, so the amount of the color used to move in the direction of the paper, वो आपको उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है। So I hope you remember, आप लोगों ने लिटमस पेपर को हाथ लगाया होगा, ठीक है ठीक है, few drops। अब आपने वही उसी सोल्यूशन को उसी तरह आप समझे कि आपके पास एक लिटमस पेपर है, आपने उसके डाउन यानी उसके जहाँ पे एक निशानी बनी है जहाँ से आपने डिप करना है, वहाँ पे आपने अपना जो सोल्यूशन है अमीनो एसिड्स का वो आपने ड्रॉप कर दिया। द पेपर इज ड्राइड, dipped into a solvent mixture consisting of butanol, acetic acid and water, इस रेशियो में। ठीक है, आप उस रेशियो में डिप करके उसको जहां पे आपने वो सॉल्यूशन डाला है वो सूख जाएगा, उसको डिप करेंगे। ये aqueous component of the solvent system binds to the paper, forms a stationary phase। अच्छा, अब होगा क्या, जो आपने सॉल्यूशन डाला हुआ जिसके अंदर आप ये पेपर डालोगे, ये उस पेपर के साथ मिलके एक चार्ज्ड पेपर बना देगा, उस पेपर की जो कंपोजिट है उसको चेंज कर देगा और उसका मतलब ये हो जाएगा कि उसके अंदर चार्ज आ जाएगा और वो जो पार्ट आपको सॉल्यूशन में से चाहिए, यानी
अमाइनो एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये अमाइनो नेगेटिवली चार्ज आपको पार्ट चाहिए, वो अपने साथ चिपका लेगा और बाकी के सारे चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज। इट मीन्स कि खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव कंपोनेंट्स को जोड़ देगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। जो रिपेल होंगे वो मूविंग हो गए, मोबाइल हो गए, तो वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दैट माइग्रेट्स ऑन द पेपर और मोबाइल फेस, वो आपको नहीं चाहिए। व्हेन द माइग्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इज अपवर्ड, ठीक है ना, अगर तो ऑब्वियसली वो चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो अपवर्ड गया तो ये असेंडिंग की क्रोमैटोग्राफी है, और वो अगर डाउनवर्ड गया तो वो नेगेटिव या डिसेंडिंग क्रोमैटोग्राफी है। अब यहाँ पे सवाल आता है, सर ये जो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमैटोग्राफी बता रहे हैं, ये तो आप मोबाइल फेज के बेसिस पे बता रहे हैं, आप हमारा तो काम है स्टेशनरी फेज निकालना। जी बेटा, आपका काम है स्टेशनरी फेज निकालना, ठीक है, मगर देयर इज ऑलवेज अ वाइस वर्सा टेक्निक, ठीक है ना, एक वाइस वर्सा फिनोमेना होता है हर चीज का। कभी कभार जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो आप फिल्टर नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ आपके पास नॉन रिक्वायर्ड होती है वो फिल्टर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अम, इसकी एग्जांपल ये दूं कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर चीनी भी मिक्स है, जिसके अंदर नमक भी मिक्स है। आपने सेपरेट करना है नमक, नमक उसमें से निकालना, बट somehow the other you failed to extract namak out of the solution, तो आप क्या करोगे, आप कोई टेक्निक लगाओगे, अच्छा शुगर निकाल देता हूँ। If you extract sugar out of that solution or mixture, so what you're left with is, ठीक है ना, salt. So there are always two way to separate techniques. कभी कभार आपके पास जो मोबाइल स्टेशनरी फेस मीडियम होता है वो आपका नॉन रिक्वायर्ड पार्ट निकाल रहा होता है, यानी प्योरिफिकेशन कर रहा होता है। जिस तरह के आपके वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स है आप लोगों के घरों के बाहर लगे हुए हैं, आप लोगों के सोसाइटीज में लगे हुए हैं, एंड सो आपके घरों के अंदर जो आप लोग वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट लगाया हुआ आप लोगों ने जिसमें से आप पानी पीते हो, दैट इज ऑल्सो अ क्रोमैटोग्राफी, अ लाइट क्रोमैटोग्राफी मीडियम। उसमें जो चीज़ आपको इम्प्योरिटीज होती हैं, नॉन रिक्वायर्ड होती हैं, वो स्टेशनरी फेज में, यानी उसके अंदर उसकी जाली में उसके फिल्टर के अंदर रह जाती हैं, दैट इज अ स्टेशनरी फेज। और जो नॉन रिक्वायर्ड होता है दैट इज अ प्योर वाटर, वो बाहर निकल जाता है मोबाइल फेज एंड यू ड्रिंक। सो दिस इज हाउ दी फिनोमेना वर्क्स, ठीक हो गया, यहाँ तक अंडरस्टूड है। One more time, beta, I need your participation one more time. Do you understand so far what is chromatography and what are the stationary and mobile phase? Do you think this is easy or any confusion left? So we can go ahead. One more time, students of mine, please participate. Don't sleep. बच गए हैं, अब एक बजने वाले हैं। खैर आगे चलते हैं इसको। उसके बाद हम पेपर क्रोमैटोग्राफी की ये एक एग्जांपल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम obliged। पेपर क्रोमैटोग्राफी की एग्जांपल है, ये वो डिप्ट एरिया है, ये आपकी मूवमेंट्स हैं और ये आपको दूसरी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन, वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्टेप्स ऑफ सेपरेशन इन क्रोमैटोग्राफी का पेपर, इसको छोड़ दें, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपसे कोई पूछेगा, ये सिर्फ इतना से है, नॉन हाइड्रेट व्हिच फॉर्म्स अ पर्पल कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ कलरिंग एजेंट। थैंक यू बेटा फिरद, थैंक यू सो मच। सिर्फ एक चीज ये याद रखें, जिस तरह हम मिथिलिन ब्लू डालते हैं डाई करने के लिए, अगर आपने पेपर क्रोमैटोग्राफी के पेपर को पढ़ना है तो उसके ऊपर आप नॉन हाइड्रोजन डालेंगे। ये एक छोटी चीज, कैमल लेजर एज व्हाट इज डिफरेंट एंड नोन एज स्टैंडर्ड अननोन मिक्सचर, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसकी पहली टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी आपके पास आ गई पेपर क्रोमैटोग्राफी, दूसरा आपका आ गया स्टेप्स। अच्छा ये भी छोड़, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, ये तीसरा टीएलसी जिसे हम कहते हैं। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी के अंदर क्या होता है, इसको भी मैं छोटा सा जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। इन दिस प्लेस ऑफ द पेपर इनर्ट सब्सटेंसेस यानी सेलुलोज एम्प्लॉयज एज सपोर्टिंग मटेरियल,
इसके दरमियान में वो लेयर रखते हैं जो कि इनर्ट होती है, यानी इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। सेलुलोज इज स्प्रेड अ थिन लेयर on a glass or a plastic paper. Chromatography separation comparatively rapid and PLC. The adsorption thin layer chromatography adsorbent such as silica gel and alumina or Kessler are used। ठीक है, ये भी आपकी टेक्निक्स है मगर ये आपसे पूछी नहीं जाएंगे। इसके अंदर जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, इसके अंदर जो मीडियम ऑफ सेपरेशन होता है, बेटा इतना सिर्फ पता होना चाहिए। अगर somebody asks you what is thin layer chromatography, you will say this is a type of chromatography where we have a medium of separation consisting of an inert substance on in the form of a thin layer like cellulose। आगे की बातें छोड़ देना बाकी, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको समझा दिया है कि सेपरेशन ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स यानी इंटर बॉन्ड्स विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ चार्ज बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जेल फिल्ट्रेशन। ये सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी है जेल फिल्ट्रेशन। इट सेपरेट्स प्रोटीन बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप एंड पोरस स्पेस पैक्ड कॉलम्स। इसके अंदर ये बेसिकली जो आपकी कमर्शियल क्रोमेटोग्राफी आ रही है या जो आपकी स्मॉलर कमर्शियल से बल्कि वो कमर्शियल ही होती है मगर ये कि वो स्पेशलाइज्ड नहीं होती, इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती। जो आपके घर में फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगे हुए हैं वो भी, और जो आपके इंडस्ट्रियल स्पेशलाइज्ड फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं वो भी इस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर ये होता है पोरस बीड्स होते हैं, एक तरफ मतलब सिलिका के मुख्तलिफ बीड्स होते हैं, कहीं पे बहुत छोटे इंडस्ट्रियल लेवल पे जहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स चाहिए होती हैं वहाँ पे ये होता है कि जिस तरह के रेत है, ग्रेन्स है, इतना छोटा छोटा भी वो पोर्शन होता है सिलिका जेल के बीड्स का, उनको पैक करते हैं एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टील के कॉलम्स में, बड़े बड़े कॉलम्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, और जब वो प्रेशर देते हैं तो इंटरपोरस स्पेस को बहुत छोटा कर देते हैं। उसकी वजह से सिलिका जेल के इसके अंदर चार्ज भी क्रिएट हो जाता है, और वो छलनी या वो स्टेनर जिस तरह बहुत स्मॉलर कंपोनेंट तक उसकी स्पेस, और आप जितना प्रेशर कम या ज़्यादा करेंगे आप वो स्पेस को लार्ज हो, तो अगर किसी प्रोटीन का स्ट्रेटबर्ग यूनिट बड़ा है तो आप स्पेस ज़्यादा कर सकते हैं, किसी का स्ट्रेटबर्ग यूनिट छोटा है तो आप स्पेस छोटी कर सकते हैं। इन दिस वे you can separate the desired form of proteins or solvents from the solution। ठीक हो गया। The other thing is कि इसके अंदर दूसरी क्या specificity होती है, इसमें charge। Silica gel can be induced charge as much as you want। If you want to separate a positively charged, you can separate a positively charged. You can want to separate a negatively charged, you can separate a negatively charged. You can separate even more positive or more negative, or less positive or less negative even। This is so specialized। ठीक है। Large elongated proteins cannot be entered in the pores and beads elute extract from the bottom of the column। तो इसमें करते क्या है कि जी ये बॉटम ऑफ द कॉलम का मतलब मैं आपको बता दूं, इस जब ये बड़े बड़े कॉलम्स बन जाते हैं, प्रेशर चैम्बर कॉलम्स बन जाते हैं, तो इनके नीचे से फुल फोर्स के साथ जो सॉल्वेंट है वो एंटर किया जाता है, और वो सॉल्वेंट इस कॉलम के इर्द गिर्द होता रहता है। जो सेपरेट चीज़, जिस चीज़ ने सेपरेट होना है वो इस कॉलम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और स्टक हो जाती है, और बाकी सारा कुछ ड्रेन हो जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि बेटा जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक के अंदर जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो मोबाइल फेज में होता है या वो स्टेशनरी फेज में होता है। तो जो स्टेशनरी फेज है वो तो वो वाला कॉलम है जो आपने बनाया है। स्टेशनरी फेज गिव यू द एक्सट्रैक्ट वांटेड, और द फ्लोटिंग या जो 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 फिल्ट्रेट है वो आपको जो फिल्ट्रेट आपसे निकालना है वो आपको स्टेशनरी फेज में मिलेगा, और जो आपका अनरिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे मोबाइल फेज में मिलता है क्योंकि वो उसके ऊपर से बैक ही चलाता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। लेट्स गो अहेड टू दिस वन। ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग कि आपने मिक्सचर डाला, देखिए जी पोरस स्पेस है और चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर से होता हुआ आराम आराम से जो जिसने ठहरना वो ठहर गया, बाकी सारा निकल गया। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू obviously this is the principle of gel chromatography and which is one of the most popular form of chromatography।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद दी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर भी आप लोगों को अब क्योंकि प्रिंसिपल मैंने बता दिया हुआ है, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट। इसके अंदर ऑब्वियसली चार्ज इंड्यूस करेंगे, आपने जिस चीज़ का कैटाइंस उठाने हैं तो आप एनाइन बना देंगे, एनाइन उठाना तो कैटाइन है, ठीक है। तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट पार्ट। इसी के अंदर आप पीएच सेपरेशन भी इसके अंदर कर सकते हैं। जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इट विल हेल्प यू टू सेपरेट दी obviously on the basis of charge or positive or negativity. Also, it will help you to separate according to pH. Obviously, हमें पता है pH हम किस तरह डिनोमिनेट करते हैं, the level of dissociation of H ion, ठीक है। H एक पॉजिटिव आयन होता है, तो अगर किसी सोल्यूशन के अंदर मोर पॉजिटिविटी है तो that would be like or more pH of lesser the pH or more acidic, one who gives more hydroxyl in negative ions or lesser H ion, that would be more acidic. So that is quite apprehendable. ठीक है। आयन एक्सचेंज सिमिलर, वही कॉलम होते हैं, वही सारा कुछ होता है। मैंने कहा आपको सिलिका जेल्स अंदर नॉर्मली डली होती है, आप चार्ज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसी तरह वो सारा कुछ। अच्छा जी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, मजे की बात है, still it works on the same principle. Affinity chromatography exploits specific bonding of a protein to another, like a ligand. The ligand is immobilized on a soluble sport and fat columns. You can adding a mixture of protein or interest. अच्छा, अब आपको पता है इसका हमारी इम्यून सिस्टम चलता है, देयर इज एंटीजन, देयर इज एंटीबॉडी, ठीक है। आई होप यू नो अ बिट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। एंटीबॉडीज वो होते हैं जो हमारे डिफेंस सेल्स होते हैं, एंटीजन्स वो हैं जो क्या कोरोना वायरस, ठीक है। तो द होल डिफेंस मैकेनिज्म, द होल डिफेंस प्रिंसिपल इसी चीज पे चलता है कि आप अपने एंटीबॉडीज को उस एंटीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे आप पुलिस को देते हो, ये तस्वीर है, ये नाम है, ये उसके फिजिकल जेस्चर्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं। Then the police goes and finds that person with this similarity and arrest him. But this is not in this book. The book say this is not the part of the book. ठीक है ना? This is part of your course. UHS ने हर साल देता है, very important है, ठीक है। मगर ये बुक में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमने सेल नोट्स सेशन के स्टार्ट में दिए थे। And if you do not have that, you put up a mail to me और मैं आपको सेल नोट्स मेल करूंगा, उसमें आप सारा सेल के बारे में पढ़ोगे, टेक्निक से पढ़ोगे और बहुत सा कुछ है वो आप सारा कुछ पढ़ोगे। दैट composes a large part of your examination as well. ठीक हो गया ताज़ीम? अच्छा अच्छा, अब हम एंटीबॉडी एंड एंटीजन, ठीक है जी। अब एंटीजन वो चीज़ है जो कि आपको वायरस है, कोरोना वायरस, इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन के लिए ना सिर्फ इनकी आइडेंटिफिकेशन एक दूसरे को दिखा दी जाती है, इन सेंस जब आप सेलुलर लेवल पर बात कर रहे होते हो तो इनके रिसेप्टर एंड्स, यानी जो रिसेप्टर की शेप होती है वो एक दूसरे को फेमिलियर किया जाता है, और जैसे ही फेमिलियर रिसेप्टर आता है तो वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं। तो यही टेक्निक अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने सेल सेपरेट करने, फॉर एग्जांपल आप मुझे एक सोल्यूशन देते हैं अभी सीआर करने के लिए कि जी इस पेशेंट का पीसीआर भेजें, देखें कि ये इसका कोरोना वायरस है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑलरेडी करूँगा कि मैं एक सोल्यूशन तैयार करूँगा, वहाँ पे मैं कोरोना वायरस के एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रिसेप्टर फॉर्म है वो अवेलेबल करूँगा, ठीक है। वो रिसेप्टर फॉर्म जैसी अवेलेबल होंगी, उसके ऊपर से जैसे कोरोना वायरस गुजरेगा वो वहाँ पे अटैच होगा, तो मैं ये बता दूंगा कि जी इस पेशेंट को कोरोना वायरस है या नहीं है। सिमिलरली हेपेटाइटिस बी, सी, इसी तरह। सो दिस इज आल्सो अ टेक्निक ऑफ बेसिकली चार्ज और एफिनिटी, ठीक है ना। एक दूसरे की एफिनिटी रखते होंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है जी। और अगेन दिस कैन बी आल्सो डन विद एसपीएससी। अच्छा जी,
The ligand immobilized on a solution sports packed columns, ठीक है जी, उसी तरह packed column, adding a mixture of protein on the protein just binds, ठीक है जी. All other proteins pass through straight away, ठीक है. Proteins, the bound proteins is then eluted and immobilized ligands and highly purified. यानी आप highly purification भी कर सकते हैं, ठीक है जी. आ गया है, देखें ये जो shapes है ना बेटा, इधर देखें, मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ. Look at this. These are the shapes जो कि हम कहते थे कि एंजाइम के लिए डिस्कस करें. Every active site has a active shape. देखो यहाँ पे आपका जो ligand है वो सर्कुलर है, तो यहाँ से जो चीज इसके साथ चिपकेगी वो सर्कुलर होगी. So a specific ligand or antibody antigen bonding system is present for the separation of different types of proteins. So this is called affinity. It is on the basis of shape of or the affinity of active site. Active site. ठीक हो गया? आगे चलते हैं. इसके बाद वर्ड heard very much, जो इसकी कमर्शियल मशीन है, जो मैंने आपको कॉलम वाला क्रोमेटोग्राफी बताई थी. तो ये जो कॉलम्स वाली क्रोमेटोग्राफी है, जब इसके अंदर प्रेशर लगाते थे, जब इसको रन करते थे, तो ऑब्वियसली जब एक टाइट सी जगह के अंदर से आपने सोल्यूशन निकालना है, उसमें कुछ प्रेशर लगाना है, इट यूज्ड टू टेक डेज. जिस तरह आज भी हमारी PCR कम से कम 4 दिन लेते हैं अच्छी लेबोरेटरी, शुगर खान या जिस तरह की अच्छी लेबोरेटरीज आज भी देते 4 to 5 days to give you the report, because जो सोल्यूशन या जो प्रिपरेशन आप प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर से फाइनल रिजल्ट देने के लिए, फाइनल टिकी या 100% सेपरेशन ऑफ सोल्यूशन को एक्वायर करने के लिए इट टेक्स so much of time. This much of time is not valuable for many of the commercial purposes. Along with that, it is not valuable for a lot of medical purposes. इसीलिए आजकल हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं अवेलेबल, मगर बहुत सी टेक्निक्स आ चुकी हैं जो कि ये 4-5 दिनों के टेस्ट हैं या वो सारी, उनको हम विद इन आवर्स कर सकते हैं. अब ये करते क्या है, इसमें नाम देखिए, आप सुने, इसका नाम से ही आपको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इन जनरल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आर स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग. द सेपरेशन कैन ग्रेटली इम्प्रूव बाय अप्लाइंग अ प्रेशर ranging from 5,000 to 10,000 kilopascals at PCIs, pounds per square inch. ठीक है, hence technique is preferred less frequently. As high pressure liquid chromatography, HPLC requires non-pressable ricin material and strong metal columns. The eluents of the columns are detected by methods such as UV absorption and fluorescence. These are the points जो इस स्लाइड पे आपको मिलेंगे अपने नोट्स में. उसको एक्सप्लेन करते हैं. जैसे हमने कॉलम्स बताया था, कि मैंने बताया था कि जी हम कॉलम्स बनाएंगे, उसके अंदर सिलिका जेल डालेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, चार्ज अप्लाई करेंगे, फिर इसके अंदर से सोल्यूशन गुजारेंगे. दैट वाज टाइम टेकिंग, दैट यूज्ड टू बी टाइम टेकिंग. तो उसका क्या काम किया है, उसकी एक मशीन बनाई जो कि बहुत छोटी सी, जिस तरह की आपकी जिस साइज का आपका डेस्कटॉप है उस साइज के आपने डेस्कटॉप बनाए. उसके अंदर जो आपने कॉलम्स बनाए वो आपने राइसिन मटेरियल का बनाए, जिस मटेरियल के आपके रॉकेट्स बनते हैं बाय द नासा और अदर एक्सप्लोरेटरी, वो जो कि आप स्पेस में भेजते हैं. ये वो राइसिन मटेरियल वो मटेरियल ऑफ मेटल होता है जिसका जो टफेस्ट मटेरियल होता है उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है. ठीक है, इट हैज अ huge tensile power inside of it. Okay? And unfortunately, if any of these ricin material columns, they unfortunately they break somehow, so they cause a huge explosion. So ये normally टूटते भी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा टेस्टेड है. इन कॉलम्स को क्या करते हैं, इस कॉलम्स के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो सकता है जो कि आपको बताया हुआ कि 10,000 psi का प्रेशर बिल्ड हो सकता है. जो सोल्यूशन इस कॉलम से गुजारना है उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं, जिस सोल्यूशन जिस
जिस कॉलम से गुजरना है और स्विच नहीं है उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करती है। एक तरफ नेगेटिव प्रेशर हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव प्रेशर होता है, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो कॉलम स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होगा तो वो मुचड़ के एक आगे जिस तरह का पतली सी चीज स्ट्रक्चर बनता है, इतना नेगेटिव प्रेशर है। और पॉजिटिव प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर राइसिन मटीरियल नहीं होगा, वो कॉलम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो एक्सप्लोड करेगा लाइक अ बॉम्ब, ठीक है। हालांकि ये मशीन छोटी सी होती है, आपकी डस्ट होती है, ठीक है, अगर इसके अंदर कॉलम से तो एक तरफ से बहुत प्रेशर से फोर्स किया जाता है, दूसरी तरफ से बहुत प्रेशर से सक किया जाता है। दिस इज द मटेरियल। और जब सोल्यूशन उसके अंदर से गुजरता है तो सेपरेशन टेक्निक्स सारी की सारी अप्लाई हो जाती है। चार्ज लग रहा होता है, साइज लग रहा होता है, एफिनिटी लग रहा होता है। और क्या होगा, विद इन फ्यू आवर्स हमारे पास जो सोल्यूशन हमने फिल्ट्रेट करना था कई दिनों में, वो हमारा फिल्टर हो जाता है कई घंटों के अंदर। सो दिस काइंड ऑफ क्रोमैटोग्राफी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो कॉलम क्रोमैटोग्राफी है, ये जो इसमें पढ़ रहे हैं जेल फिल्ट्रेशन का, दिस इज द कमर्शियल, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कमर्शियल क्रोमैटोग्राफी। और जो इसके लिए अब आपके पास मशीन आ गई हुई है, बेसिकली ये है वही चीज़, मगर ये इस मशीन के इस्तेमाल की वजह से इस परफॉर्मेंस के बेस पे इसकी क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक का नाम अलग कर दिया। इसका नाम ही लग गया हाई परफॉर्मेंस, इसकी टेक्निक की बेसिकली क्वालिटी की वजह से, ना स्पेसिफिकेशन की वजह से, ठीक है जी। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कमर्शियल यूज्ड क्रोमैटोग्राफी टेक्निक एट द, हो गया क्रोमैटोग्राफी खत्म होगी बेटा। अब क्रोमैटोग्राफी को दोबारा से रिवाइज करते हैं, पीछे से आते हैं। हमने सर्टिफिकेशन की सेलुलर, क्रोमैटोग्राफी की इंट्रा सेलुलर। क्रोमैटोग्राफी हमने किस तरह की, हम लोगों ने इस तरह क्रोमैटोग्राफी के दो कमरे हैं, दरम्यान में दीवार है या खिड़की है, जिसके अंदर से जो हमें मटेरियल चाहिए वह आइदर विद द हेल्प ऑफ चार्ज और साइज और एफिनिटी वो क्रॉस करेगा, वरना वो उस कमरे से बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल है। इलेक्ट्रोफ्रेसिस, बेटा इलेक्ट्रोफ्रेसिस तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की चीज़ों थ्रू आप लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। दोनों मटेरियल्स को, एक पॉजिटिव की तरफ जाता है, एक नेगेटिव की तरफ जाता है। आई डोंट थिंक सो दैट दैट हैज टू बी एक्सप्लेन, बट द थिंग व्हिच हैव टू बी एक्सप्लेन, नेगेटिव पॉलीएक्रिलामाइड जेल पेज इलेक्ट्रोफ्रेसिस, ठीक है जी। आपसे अक्सर सवाल है कि बेटा एक्सप्लेन व्हाट इज पेज, ठीक है, तो आप कहेंगे पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफ्रेसिस को हम पेज कहते हैं। पी फॉर पॉलीएक्रिलामाइड, P for polyacrylamide, A for acrylamide, sorry, P for poly, A for acrylamide, ठीक है, और G for gel and E for electrophoresis। तो ये जो नेटिव है इसको इसमें अंदर नहीं डालना, ठीक है। सो आपसे जब भी पूछेगा कोई पेज क्या है तो आप कहेंगे सर दिस इज द नेम गिवन टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब द पॉइंट कम्स कि जी ये नाम क्यों दिया गया, कि हम जब हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी उसके अंदर, तो हमने क्या किया था कि हमने एक सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर मिलाया था और हमने दो तरफ इलेक्ट्रोड लगाया। तो जो नेगेटिव था उसके ऊपर सारा सोडियम आ गया था और जो पॉजिटिव था उसके ऊपर सारा क्लोरीन आ गया था। उसकी वजह से फिर हम लोगों ने जब KCl में डाला था वो HCl बन गया था और वो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है, वो हमने सेपरेट किया। अब ये एक रॉ और इम्प्योरिटीज वाला मेथड है। अब अगर आपने प्रॉपर इम्प्योरिटीज वाला मेथड यानी 100% फुल प्रूफ मेथड आपने इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करेंगे, एक सोल्यूशन को एक जेल के अंदर डालेंगे जिस जेल के अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं आ सकती, ठीक है। उस जेल का नाम है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। अब मजे की बात है क्यों ये जेल इस्तेमाल किया जाता है, ये जेल भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह आपकी HPLC के अंदर आप इनर्ट थिन लेयर HPLC के अंदर आप इनर्ट लेयर करते थे, ये भी इनर्ट लेयर, इसके अंदर साथ जितना भी चार्ज डिसॉल्व हो इसके अपने मटीरियल, जब हम NaCl को पानी के अंदर मिक्स करके करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी चार्ज ले लेते हैं ना, तो वो इम्प्योरिटीज के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसके अंदर पॉलीएक्रिलामाइड जेल
इम्प्योरिटीज के अंदर शामिल नहीं होता, ठीक है, और इम्प्योरिटीज के अंदर शामिल नहीं होता, इसको कुछ चार्ज नहीं करता, इंस्टेड इट टर्न्स एक कॉपर की अच्छी तार जिस तरह ये सारा कुछ कंडक्ट करता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसके इसके अंदर इट इज अ लाइट सी थ्रू मटेरियल, एक बड़ा जेल, जिस तरह नहीं होता जेली हम खाते हैं घरों में बनाते हैं, खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, मैं तो अभी भी खाता हूँ, बाकी नहीं, ठीक है। तो जेली के जिस तरह एक सी थ्रू मटेरियल होता है, जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देते हैं तो इस जेली को अगर आप इसके फोटोमीटर के सामने रखेंगे तो आपको डिफरेंट सेपरेशन बैंड्स नजर आएंगे, ठीक है। इसीलिए जब आपने नॉर्मली इलेक्ट्रोफोरेसिस उसको करते हैं, जब हमने प्रोटीन सेपरेट करना, प्रोटीन को हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स की टाइप्स होती हैं, हम उनको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो जब हम उसके अंदर से करंट गुजारते हैं, अब नाउ कम ओवर है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, जब हमने इस कॉलम, ये मशीन भी पड़ी हुई हमारे लैब में, इंशाल्लाह आप कम बैक आई विल शो यू एवरी डिटेल्स। अब इसके अंदर ये जेल है, ठीक है, जब आप जेल को इसके अंदर से करंट निकालेंगे तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आएगा वो इस तरह आएगा। ये जेल को आपने निकाल दिया, ठीक है, ये जितना ज्यादा, ये देखो साथ आपके स्वेटबर्ग यूनिट के हिसाब से स्वेटबर्ग रेटिंग है, ठीक है, तो जितना चार्ज के हिसाब से अट्रैक्ट होके प्रोटीन एक किसी भी पोल के साइड पे गया, उसको स्वेटबर्ग यूनिट के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करेंगे। यदि प्रोटीन 7 स्वेटबर्ग यूनिट पे आ गया तो वो फॉर एग्जांपल बेलीन होगा, एक 5 पे आ गया तो वो ग्लूटामीन होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह ये पॉलीएक्रिलामाइड जेल के अगेंस्ट मूव करते हैं, अगेंस्ट थ्रू मूव करते हैं, तो उसको दोबारा से हमारे लिए असेस करना आसान है। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। इसमें वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर या पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एक टाइप है जिसे कहते हैं एसटीएस पेज। एसटीएस स्टैंड्स फॉर सोडियम ड्यूटाइल सल्फेट। आपको पता है कि हम जितने भी इलेक्ट्रोफोरेसिस या जितनी भी हम चीज़ें सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम कोई लेबोरेटरी टेक्निक्स, कोई एक्चुअली केमिस्ट्री टेक्निक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बायोकेमिस्ट्री टेक्निक्स पढ़ा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर सकें और ह्यूमन बॉडी की चीज़ें क्लिनिकली स्टडी कर सकें। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मटेरियल है, इट इज मेड बाय प्रोटीन मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। इसके अलावा हमारी बॉडी में कोई चौथी चीज एग्जिस्ट नहीं करती इन अ फॉर्म ऑफ एनी अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो हमने प्रोटीन्स को जब सेपरेट करना होता है, मोस्ट ऑफ दीज सॉल्वेंट्स एंड प्रोटीन्स आर blood, these immunoglobulins, these viruses, these bacteria, these DNA and everything is protein in nature, ठीक है। तो जब प्रोटीन को आपने सेपरेट करना होता है तो कोई प्रोटीन का चार्ज थोड़ा सा पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे सोल्यूशन को नेगेटिवली यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोग 20-25 की क्लास हो, ठीक है, 10 से 20-25 में से मैं इतना तो सेपरेट कर सकता हूँ, अच्छा 6-7 लड़कियां थी, 10-12 लड़के थे, या ये ऑपोजिट थे, उधर भी अराउंड। अब कौन सी पतली थी, कौन सी लंबी थी, कौन सा मोटा था, कौन सा छोटा था, ये बिल्ली मुश्किल होगा एक क्लास में सेपरेट कर। उससे बेहतर ये है कि फिर मैं आप सबको बनाऊँ एक यूनिफॉर्म, ठीक है, और यूनिफॉर्म बनाने के बाद आपके सर पे रखूँ टोपियाँ जिसके ऊपर इंडिकेटर्स हो, ठीक है, और मैं सामने खड़ा हो जाऊँ, जो जिसकी टोपी ऊपर एक लेवल को टच करेगी वो टॉल है, जो नीचे आएगी वो शॉर्ट है, ठीक है। सबको एक यूनिफॉर्म कलर कहते हैं विदाउट इवन नोटिसिंग कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन कैसा है। मैं आप लोगों में से टॉल और शॉर्ट को अलग करता हूँ। यही काम हम यहाँ पे करते हैं, हम जितना भी प्रोटीन है उसे नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। और नेगेटिव चार्ज करने का मतलब ये है कि जब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया तो एक जगह पे, एक कॉलम में, एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में सारा नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है। और जब हम करंट रन करते हैं तो जिस तरह सारे रनर्स एक लाइन में नहीं लग जाते और फिर कहाँ बचता है वो सारे भागना शुरू हो जाते, तो वो सारे भागना शुरू हो। सो अगेंस्ट द चार्ज इन यूनिट टाइम we can separate even more proficiently. So for that negatively charge करने के लिए जो solution use होता है वो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट होता है, ठीक है। बस इसकी इतनी इम्पोर्टेंट है
if somebody asks, beta, what is SDS and what is its function? आप बताओगे बेटा sodium butyl SDS stands for sodium butyl sulfate. It is used to induce uniform negative charge across the protein sample. That's it. ठीक हो गया? अच्छा जी, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, ये सारी चीजें छोड़कर फिर मैं आपको बताता हूँ फोटोमेट्री। फोटोमेट्री तो लोग आती होगी, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। फोटोमेट्री के अंदर मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप उसके फोटोनिक कलर के साथ सेपरेट करें। आपको पता है आपकी लाइट रेनबो से बनी हुई है, 7 कलर्स और हर कलर एक स्पेसिफिक लेंथ वेव पे आता है, ठीक है। द मोमेंट यू पास light through a solution due to refractory index of that solution, वो light diverge होती है, divert नहीं होती, diverge होती है, जैसे अपना path change करती है। जो चेंज इन पैथ है वो आगे हमारे फोटोमीटर सेल्स पड़े होते हैं, वो उसको रीड करते हैं, ठीक है। और वो रीड करने के बाद वो बताते हैं कि इतनी डाइवर्जेंट हुई। तो इट मींस जिस सोल्यूशन में से आपने लाइट गुजारी है उसकी थिकनेस क्या है, उस थिकनेस को आप मेजर करते हैं और आप सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि उसी लाइट को डाइवर्ट करने के बाद उसका कलर देखा जाता था, स्पेक्ट्रम कलर देखा जाता है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, और वो दैट यूज्ड टू शो अस कि कितनी डाइवर्जेंस, ठीक है। आपको पता है आपने लाइट पढ़ी हुई है कि किस ऑर्डर में होती है, पहले येलो, फिर ग्रीन, फिर रेड, इस तरह सारे अल्ट्रावायलेट्स आते हैं, ठीक हो गया। तो वो सेपरेशन टेक्निक्स होती थी। स्पेक्ट्रोमीटर्स दोनों हमारे पास मैनुअल और ऑटोमेटिक लैब्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको हम दिखा देते हैं। इसके अंदर जो जानने वाली चीज़ है, जो क्वेश्चन क्रिएटिंग चीज़ है, वो है बेयर्स लॉ। Long ratio intensity incident of light to an emergent light is directly proportional to the concentration of solution. यानी जितनी डाइवर्जेंस होगी लाइट की जो कि अंदर डाली गई है और वो निकली है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द concentration of the solution. LO intensity of the light, ठीक है। LE intensity of emergent light और concentration of solution। C और K is the constant, हर जगह K का, ठीक है जी। लैम्बर्ट लॉ ये हो गया। अच्छा, लैम्बर्ट लॉ के दरमियान में जो थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन है वो भी मैटर करती है, ठीक है जी। The log ratio of intensity of incident light to emergent light is directly proportional to the thickness divided by the concentration of homogen is kept constant. अगर आप थिकनेस कांस्टेंट कर देंगे तो थिकनेस कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर देंगे तो थिकनेस के ऊपर आपका वो आ जाएगा। ये हो गया लैम्बर्ट लॉ, ठीक है ना। उसके बाद बेयर्स लॉ, बेयर्स लैम्बर्ट लॉ। अब बेयर्स आप भी आ गए दरमियान में, पहले उन्होंने कहा जी लैम्बर्ट लॉ ने तो थिकनेस निकाल दी और कंसंट्रेशन निकाल दी, मैंने कहा जी मैं दोनों को मिला के साथ निकाल लेता हूँ। व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट कौन सी होती है, जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, ठीक है। आउट ऑफ 7 लाइट्स दैट आर इन सिंगल लाइट, जो हम लाइट डेली सनलाइट देखते हैं इसमें 7 लाइट्स होती हैं, तो अगर हम से एक लाइट को भी सेपरेट किया जिसे लेजर लाइट कहते हैं, वो मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है। The intensity of light decreases proportionally by increasing the thickness. अगर अब आप किसी कपड़े के अंदर से वो लाइट गुजारते हो, लेजर लाइट हो, तो वो उसकी जो दूसरी क्रॉस ओवर होकर दीवार पर लाइट पड़ रही होती है, उसकी थिकनेस या उसकी जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो जितना कपड़े के आप फोल्ड बढ़ाओगे थिकनेस कम हो जाती है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है जी, और कंसंट्रेशन भी हो गया। सो आगे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपकी थिकनेस और कंसंट्रेशन की इनवर्स रेशो आ गई, ठीक है। और आप इसको अब्जॉर्बेंट के तौर पे भी इस रेशो को रेशो ऑफ अब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं, अब्जॉर्बेंस भी कहते हैं, एबिलिटी टू अब्जॉर्ब लाइट, ठीक हो गया। एंड सो फॉर सो, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी आपको फोटोमेट्री के अंदर, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है। इसके अंदर ये बेयर्स लॉ, बेयर्स लैम्बर्ट लॉ और लैम्बर्ट लॉ, ये अलग अलग ये तीनों लॉज आपको एक एक स्लाइड पे मिलेंगे। इनकी इक्वेशन ड्राइव नहीं करनी, इनके दरमियान में सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये डिनोमिनेट क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं
ट्रांसमिटेंस ये जिसकी जो लेवल ऑफ कंडक्शन ऑफ लाइट है जिसमें से ट्रांसमिट हो सकती है लाइट। ये एक और टर्म है जो आपने द रेशियो ऑफ इमर्जेंट लाइट टू इंसिडेंट लाइट, ठीक है जी। जितनी डाली है और जितना निकला, इन दोनों का रेशियो का अगर आप लॉग निकालेंगे तो इसे कहते हैं ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, यानी अगर एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी ट्रांसमिटेंस उतनी कम होगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो उसकी ट्रांसमिटेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अगर आप प्रेजेंट हो, ठीक है। उसके बाद अब्जॉर्प्शन वो मैंने बता दिया कि अब्जॉर्प्शन भी ट्रांसमिटेंस के ऑपोजिट है, सो दैट इज द सेम। उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज द सेम थिंग एज फोटोमेट्री। इसके अंदर सिर्फ फर्क क्या होता है कि ये जो सारा काम आप लोग कर रहे हैं कि जी आपने लाइट को देखना है कि उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, उसकी ज़्यादा हुई है, उसकी डाइवर्जेंट कम हुई है, उसकी डाइवर्जेंस ज़्यादा हुई है, वो सारा काम आपके फोटोमीटर सेल्स करते हैं। मॉडर्न डायोड इलेक्ट्रोड्स हैं, डायोड्स पड़े होते हैं लाइट के आखिरी, जिस तरह आपका सिनेमा की स्क्रीन है, आपकी रेटिना है, उसी तरह डायोड्स पड़े होते हैं। लाइट जितनी कम या ज़्यादा इंटेंसिटी में पड़ती है उतनी कम या ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस करती है, और जिस एंगल पे पड़ती है उस एंगल के हिसाब से डायोड नंबर इंक्रीज कर जाता है। सो यू कंप्यूटर कैन एक्चुअली translate the number of divergence and thickness together, और आपको बता सकता है एक फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद कि जी आपका सॉल्यूशन की थिकनेस क्या है, ठीक हो गया। और इस थिकनेस के हिसाब से आपके सॉल्यूशन में क्या है, क्वार्ट्ज सेल्स और यूज होते हैं, ठीक है जी। दैट इज ऑल। अच्छा जी, ये तो एक आसान सी टेक्निक थी। अब रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है। ये जो रेडियो इम्यूनो एसे है इसको हम कहते हैं एलाइजा, ठीक है, एलाइजा। मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। दिस इज द लास्ट टेक्निक टू डिवाइस, ठीक है। रेडियो इम्यूनो एसे कंपाउंड तो इसके लास्ट एलाइजा आप लोगों को पता होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा। एलाइजा is based on immunochemical principle of antigen antibody and against the protein and damage of polycystin, the biological consisting of the estimated form, ठीक हो गया। ये पढ़ लेना, आपके पास उसमें सेल नोट्स में सारा अवेलेबल है। मैंने सिर्फ आपको एलाइजा का पूरा नाम बताया और एलाइजा की मैं टेक्निक बताता हूँ। एलाइजा बेसिकली एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वाले प्रिंसिपल पे काम करती है या एफिनिटी बेस पे काम करती है। इसके अंदर भी उसी तरह होता है, एंजाइम लिंक्ड। अब आपको फॉर एग्जांपल पता है कि मेरे पास द मोस्ट ऑन प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर मेरा बीटा एक्सीजी कोरियोनोग्राफिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। बीटा एक्सीजी हमारा वो एंजाइम है जो कि ह्यूमन को कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंजाइम के साथ बाइंड करता है। तो मैं एक स्ट्रिप बनाता हूँ, उसके ऊपर मैं बीटा एचसीजी अटैच करता हूँ, ट्राई करता हूँ, और वो मैं स्ट्रिप आपको एज ए पेशेंट देता हूँ। व्हेन यू डिप दैट स्टिक इनटू द यूरिन, तो जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंजाइम उसके अंदर फिर रहा होगा वो उस बीटा एचसीजी के साथ बाइंड करेगा, उस स्ट्रिप के ऊपर बाइंड करेगा, और दे कॉज अ चेंज इन द कलर ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आना शुरू हो गया। जिस तरह लिटमस पेपर था वही वाला काम यहाँ पे होता है, मगर क्योंकि इसके अंदर जो एफिनिटी, द एलिमेंट ऑफ एफिनिटी जो इस्तेमाल की जाती है, ना वो चार्ज होता है, ना वो साइज होता है, ना वो पीएच होता है, वो बेसिकली एंजाइम नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम लिंकेज होता है। एक आपको अगर एंजाइम मॉलिक्यूल याद हो जो मैंने पढ़ाई थी, एक कॉम्पिटिटिव होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर इनहिबिटर्स कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है जो कि एंजाइम टू द सबस्ट्रेट कर रहा होता है। जो एंजाइम आपने
एक साइड पे लगा दिया हुआ और सबस्ट्रेट आपके सॉल्यूशन के अंदर जिसमें से सेपरेट करना है, या दी अदर वे राउंड। ये किट्स डिफरेंट तरीके से बनती हैं। ये आपकी ट्रोपोनिन टी की किट्स हैं, आपकी HCG की, आपकी हेपेटाइटिस की। इसमें कई जगह पे या तो आपका सबस्ट्रेट लेवल आपने स्ट्रिप के ऊपर लगाया होता है, या आपका एंजाइम आपने स्ट्रिप पे लगा होता है। तो नॉर्मली एंजाइम क्योंकि एक बायो केमिकली लिविंग टिश्यू होता है, तो उसको आप लिविंग टिश्यू के अंदर से ही निकालते हैं, जैसे ब्लड में से, यूरिन में से। वो एक अपनी पीएच और टेम्परेचर मेंटेन करके आ रहा होता है, और उसका सबस्ट्रेट हम लोगों ने स्ट्रिप के ऊपर लगाया होता है, ठीक है। तो उधर से वो एंजाइम लिंकेज होती है, इसीलिए इसको कहते हैं एंजाइम लिंक अमीनो एसिड, ठीक है। और आप उसे निकाल सकते हैं। ये इतनी अच्छी टेक्निक है कि ये आपको रेडीली टेस्ट विद इन फ्यू मिनट्स देती है। So, but that is all about all the techniques, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। जिन्होंने तो पहले पढ़ा हुआ है उनको तो ऑब्वियसली समझ आ गई होगी, और मैंने क्योंकि पहले जब लेक्चर्स में पढ़ाया था, मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैंने काफ़ी डिटेल्स में गया था। मगर रिवीजन में ऑब्वियसली इट्स फास्ट, आई स्किप्ड लॉट ऑफ इट, ठीक है। और नहीं स्किप नहीं किया मैंने कुछ, मगर फास्ट गया, ठीक है ना। और ऑब्वियसली आई लेफ्ट अलॉट टू योर ओन स्टडी, but I know few of you have joined recently. So, those who have joined recently, in this course of revision, we want कि आप लोग ये सारा जो मिसिंग कोर्स है, या तो अगर तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ, वी वांट कि आप लोग इसको पढ़ो और इसको समझो। बट इट इज़ फास्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम स्केड्यूल ऑफ फेम जो हमारे पास है। तो इसके लिए I am intended to have you anytime, anywhere in the time of day, जहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है, पूछनी है, एक्वायर करनी है, I'm at your service. You have all my contacts, I'm sure. If you don't, my email is here. Put up your email, I will personally give you everything. ठीक हो गया? Thank you so very much, bachas. Thank you so much. I hope this was somehow helpful. And see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz for now.